अब देखो, now we will study today about my inductance. Okay, what do you mean by the word inductance? Inductance होता है इस तरह का वायर, like this. देखा होगा, जिस वायर में whosoever wire is been just we have twisted, rather than using a big long wire, we have just twisted that wire. Okay, अब इंडक्टेंस जो है बिहेव करता है एज बाय इंडक्टर. ठीक है, जो स्पाइरल फॉर्म के जो इंडक्टेंस होते हैं वो इंडक्टर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं. इट बिहेव्स लाइक अ व्हाट, माय इंडक्टर. एनी डाउट? No. Now write the rules for inductor. Write it down, the rules. Where there is an electricity, there must be magnetism. Right? We know that. Okay. Now, where there is a magnetism, there must be electricity. Correct? So this is the first rule of the inductor, that wherever the magnetism is there, there will be electricity, or wherever electricity will be there, there will be magnetism. Have you written out this thing? Yes, sir. One Okay. Yep. Janisha, लिखा बेटा? Janisha, लिखी बेटी? Yes, ma'am. Written, ma'am. Okay, fine. Second, conductor placed in a magnetic field. When a conductor placed in a magnetic field, if the field lines, Ma'am. या बेटा? मैम एक्चुअली वो हाथ का मांस फटा हुआ ना तो लिखा नहीं जा रहा. आप मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दोगे? मैं YouTube पे डाल दूंगी, तो देख लेना. ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक है, लेक्चर मैं में वहाँ वैसे से भी नोट कर, मैं बाद में वहाँ से नोट जब कर भी लूंगी. तुझे लेना होगा तो YouTube से ले लेना. और प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो, कम से कम लाइक तो कर दो हर वीडियोस का एटलीस्ट. मैम क्या है? चल मैं दे दूंगी. Okay, leave it. So, where a conductor placed in a magnetic field, if the field lines tries to change the force, if the field lines tries to change, force will produce, which is known as what, my EMF. So whenever the conductor, whenever a solid, whatever type of conductor, okay, whenever we are placing the conductor in our magnetic field, what happened? Force is introduced into the conductor, it is in the form of what, my EMF, that we have already studied it. Okay, now EMF behaves like a what, two ways. That is, one is my self-inductance, second is my mutual inductance. Okay, now self-inductance, mutual inductance means what? See, we know that if the flux will change, our current will change. Our current will change, then my EMF will change. That is, my potential will change, right? So according to my Faraday law, the EMF get induced in a conductor whenever there is a change in my magnetic flux. Correct? Yes, sir. Yes, ma'am. Correct. Now, induced EMF, whatever the induced EMF is, it behaves like my two ways, that is my self-inductance and my mutual inductance. Now, see here. Self-inductance means the battery is connected directly. See here. Okay, now is this clear to you? Self-inductance or the self-induction means that property of a coil. Coil has a property just to reduce the flow and decay of the current. Why? Because it is wounded so much, है ना? एक स्ट्रेट वायर कोई करंट जाने में कितना कम टाइम लगेगा, लेकिन वही वायर को अगर गोल 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 घुमा के लेकर जाएंगे तो उसे जाने में थोड़ा सा तो ज्यादा टाइम लगेगा बजाय स्ट्रेट लाइन के. हम स्ट्रेट पाथ के रोड पे हम लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन वही अगर सर्कल 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 रोड अगर रहा
तो हमें थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, ब्रेक्स तो मिलेंगे ना, क्योंकि जहां जहां भी हमें सर्कल होता है तो हम ब्रेक्स तो लगाते हैं। यस करेक्ट है। मैम। इसीलिए Yes, यहाँ ma'am. पे हमारा जो ग्रोथ ऑफ द करंट है वो क्या है, थोड़ा सा डिले हो जाता है। क्लियर। सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे देखो, ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। ओके। दूसरा वायर ये रजिस्टर से कनेक्टेड है, रजिस्टर इससे कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, ये एक कनेक्शन हुआ। दूसरा कनेक्शन, रजिस्टर इससे कनेक्टेड है, फिर ये वायर इससे कनेक्टेड है, तो ये दूसरा कनेक्शन हो गया। समझ में आया। अब दो कनेक्शन में मुझे एक बात बताओ, जो वायर से जो उंडेड है वो जल्दी करंट फ्लो कराएगा, जिसमें कोई वायर नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेट वायर है, तो कौन सा बल्ब जल्दी ग्रो करेगा, ए या बी? B. ऑब्वियसली, क्योंकि सीधा ये स्ट्रेट वायर से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉइल में हमेशा क्या हो रहा है, डिले हो रहा है करंट का। ठीक वैसे ही जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, यानी कि स्विच को उठा देंगे, तो सबसे पहले बी का लाइट जाएगा, लेकिन चूंकि इसके अंदर में ऑलरेडी क्या है, करंट इंड्यूस्ड है, तो ये बी ए जो है वो धीरे धीरे ग्रो इसका खत्म होगा। क्लियर है, टॉपिक क्लियर है? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. तुरंत ग्लो हुआ B1। Yes, ma'am. अब B2 देखना, धीरे 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 B2 हो। B1 तुरंत चला गया, लेकिन B2 चूंकि उसके अंदर क्या है, इंड्यूस्ड करंट है, तो धीरे धीरे जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। कोई डाउट? No, ma'am. जनिशा कोई डाउट है बेटा सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस में? नो मैम। नाउ राइट इट डाउन। So inductance is how many types? Inductance is of two types. One is what my self inductance and another is what my mutual inductance. Okay. सेल्फ इंडक्टेंस जो होता है वो अपने आप ही ले लेता है करंट को, लेकिन म्यूचुअल जो है हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है करंट, जैसे कि हम लोग सोलेनॉइड के थ्रू कर रहे हैं, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ चलो ये मेरा बंदा है, ये हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है। Now, write the heading self-inductance of a conductor. When a current flows through a coil, it produces magnetic field around it, which gets linked with the coil.
When current changes, field which is linked with coil gets change, then flux will be changed. Any change in flux will produce EMF. Any change in flux will produce EMF. This phenomena of getting EMF is called self-inductance. It's called in the self-induction. This phenomena of getting EMF is called self-induction, and EMF is known as self-induced EMF. And EMF is known as self-induced EMF. देखो, इसमें हमारा एनर्जी हमेशा स्टोर होता है, किसमें? हमारे इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस में हमारी एनर्जी स्टोर होती है। तो जो इंडक्टर है वो क्या है? डिवाइस है। सेल्फ इंडक्टेंस हमारा प्रोसीजर है। सेल्फ इंडक्शन, ये चीज को लिख लो। इंडक्टर हमारा डिवाइस है, सेल्फ इंडक्शन हमारा प्रोसीजर है, और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है? हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है, जिस तरह से कैपेसिटर हमारा क्या है? डिवाइस है, और कैपेसिटेंस हमारा इसको चार्ज भी करना। जिस तरह से कैपेसिटर हमारा डिवाइस है और कैपेसिटेंस हमारा क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक वैसे ही इंडक्टर हमारा डिवाइस है, सेल्फ इंडक्शन हमारा प्रोसीजर है, और सेल्फ इंडक्टेंस हमारी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? बढ़िया। जनिशा, कोई डाउट है बेटा? नो मैम। वेरी गुड। अगर सपोज करो कि जैसे कि हमने पहले कह दिया था, ये हमने पहले भी सिखाया है कि अगर हमारा ये कॉइल है, करंट अगर यहाँ से इंक्रीज हो रहा है तो हमारा अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा इंड्यूस्ड करंट उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसे डिक्रीज करने के लिए। करेक्ट? यही जो इंड्यूस्ड करंट है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? So induced current opposes increase in current. फैराडे लॉ। फिर डिक्रीज इन करंट वो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ देख, अगर सपोज करो करंट ऐसे जा रहा है, आई डिक्रीज है, तो इसके साथ ही चला जाएगा इंड्यूस्ड करंट यानी कि हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट उसे क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि आई क्या है? हमारा डिक्रीज हो रहा है। ये हमारा लेंस है, ये हमारा क्या है? फैराडे है। कोई दिक्कत? नो। धनुश्री, जनिशा, कोई दिक्कत नहीं है? नो मैम। अच्छा, अब इसमें सारे फॉर्मूलाज है जो मैं तुझे बाद में लिखवाती हूँ। ठीक है, लिख ले, नोट करके लिख ले। सेल्फ इंडक्शन
It is a phenomena in which a change in electric current in a coil produces an induced EMF in the coil itself. A phenomena in which It is a phenomena in which a change in electric current in the coil produces an induced EMF in the coil itself. Whose formula is E is equals to V is equals to क्या आता है? Q upon T. yes on. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E is equals to DI upon DT directly proportional. है ना? करंट की बात करिए और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसलिए एक्चुअल करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो माइनस में चला गया क्योंकि ये शो कर रहा है कि हमारा सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। और इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एल। एल क्या है? हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। ये है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, एल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इसके बारे में लिखो एल, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखो एल को कैसे करेंगे? एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी होगा। Yes, ma'am. है ना? ओके, अब लिखो इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। It is a ratio of self-induced EMF to the rate of change of current in the coil. और इसकी SI यूनिट क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस की हेनरी। और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? हमारा कॉइल कैसा है। ठीक है, ओके। yes on. Yes, ma'am. अच्छा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस के एक और है फॉर्मूला, पहले म्यूचुअल कर लो फिर स्टार्ट। तो म्यूचुअल क्या हो गया कि हमारा दूसरे कॉइल के साथ मेरा दूसरा जो हमारा है क्या कहते हैं बल्ब, वो कैसे काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या होता है? हमारा एक प्राइमरी कॉइल तो रहेगा ही रहेगा, है ना? ये प्राइमरी कॉइल तो रहेगा ही रहेगा। इस प्राइमरी कॉइल से जैसे कि हमारा बल्ब इसके साथ क्या हो गया था? ग्लो फास्ट हो गया था, राइट? अब इसके आगे हमारा एक और है जिसके साथ हमारा दूसरा बल्ब कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया? स्लो ग्लो नहीं हुआ था? अभी जस्ट हमने प्रैक्टिकल में देखा, करेक्ट? तो ये किसकी वजह से होता है? इसने यानी कि कॉइल 1 ने कितना मैग्नेटिक फील्ड दिया कॉइल 2 को, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा तो इसकी ग्लो तुरंत रुक गई, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से चार्ज है, तो धीरे धीरे ये ग्लो बंद होगा। बात क्लियर है? हम फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, देख फिर से समझा रहे हैं। हमने अभी जस्ट प्रैक्टिकल में देखा है कि अगर हमारा बल्ब, ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा बल्ब कनेक्टेड था, ये बैटरी है, ठीक है, करंट ऐसे गया और इधर गया और इधर से आया, तो हमारा बल्ब क्या हो गया? तुरंत ग्लो कर गया। लेकिन जब यहाँ पे हमारा दूसरा सोलेनॉइड था, जब तक ये बैटरी ये जब मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये मैग्नेटिक, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है,
ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, जब प्राइमरी अपनी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है किसको, सेकेंडरी को, तब जाकर के सेकेंडरी का छोटू सा बल्ब ग्लो किया धीरे धीरे। इट हैज टेकन द टाइम, यानी कि B2 बल्ब जो था उसने टाइम लिया ना, B1 तो तुरंत ग्लो हो गया था, इमीडिएटली yes, ग्लो हो गई थी। B2 ने टाइम लिया था ग्लो होने के लिए, क्योंकि वहां पे सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड चार्ज होगा तब ना जाकर के B2 को ग्लो करेगा। yes, ma'am. तो ये क्या हो गया हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, जब तो इसका एक हम तो एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों शेयर कर रहे हैं, ठीक है मैम। मैं आपको जितना पढ़ाऊंगी आप उतना ही पढ़ पाओगे ना। मैं अगर आपको जी। गलत सिखाती रहूंगी आप भी गलत सीखते रहोगे। अगर मैं बोलूंगी A फॉर एप्पल नहीं A फॉर बॉल, तो आप भी तो यही बोलोगे ना A फॉर बॉल। yes, ma'am. तो ये है हमारा म्यूचुअल। म्यूचुअल क्या है, प्राइमरी जितना मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वाले को देगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल को देगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वो लेगा। वो कहाँ से पैदा करेगा, वो तो बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है। जी मैम। ये देखना सर्किट, ये देख, क्या ये मेरा जो सोलेनॉइड है क्या वो बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो, ये रजिस्टर से कनेक्टेड है और ये बल्ब से जी मैम। कनेक्टेड है ना। बल्ब जी इससे मैम। कनेक्टेड है, ये तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये बैटरी से कनेक्टेड ही नहीं है। B1 बैटरी से कनेक्टेड है, देख, डिंग 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 डिंग। ठीक मैम। तो ये सर्किट क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस का, और ये सर्किट क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस का। जितना रेजिस्टर दे पाएगा उतना ये हमारा सोलेनॉइड चार्ज होगा। ठीक मैम। और ये रजिस्टर किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली हमारा B1 से कनेक्टेड है। ये सेल्फ इंडक्टेंस में आ गया। अब कोई डाउट है किसी को? नहीं मैम। जनिश्री, जनिशा, दोनों को मिक्सी कर दी। नो मैम। धनश्री, No, ma'am. अब लिखो म्यूचुअल इंडक्टेंस। इन म्यूचुअल इंडक्टेंस देयर आर टू कॉइल्स। In mutual inductance, there are two coils. Current is passed in one coil. Current is passed in one coil. As current increases, there is a change in the flux. There is a change in the flux, and as current decreases, there is a change in the flux. Sorry, sorry. What we have written, I'm just repeating it again. In a mutual inductance, there are two coils. The current is passed in one coil. As current increases, there is a change in the flux, and as a result, current is induced in the second coil. Sorry, I repeated the same line. The change in the flux of the coil 1, the change in the flux in the coil 1, as a result, EMF is induced in the coil 2. ठीक है, अब देखो, अब क्या हमने कहा, अगर हमारा प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, अगर हमारे प्राइमरी कॉइल में करंट इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, तो हमारा सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हमारा इंड्यूस्ड करंट भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगा तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो इंक्रीज होगा, है ना।
अब उल्टा कर दो, यस मैम। अगर प्राइमरी कॉइल में हमारा करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसमें डिक्रीज हो गया तो हमारा सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डिक्रीज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी तो इंड्यूस्ड करंट भी डिक्रीज होगा। अगर इंड्यूस्ड करंट डिक्रीज होगा तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो डिक्रीज होगा। समझ में आई बात? किसी को कोई डाउट है? नो No, जनश्री, जनिशा, no, ma'am. लिखो, फटाफट लिखो। और ठीक वैसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, अब बुक को एक बार खोल के देख लेना। वैसे यहाँ पे भी हमारा सेम उसी तरह से फॉर्मूला होगा, बस यहाँ पे एल की जगह पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई सिंपल ले लो, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा माइनस एम डी आई अपॉन डी टी, ये ईएमएफ के लिए है। और वही म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आई अपॉन डी टी। मैम एच क्या है? एच का है, एम है अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस। वहां सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल यूज किए थे, यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए एम यूज करेंगे। ठीक है, जी मैम। और इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस